الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين أما وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيدنا مولانا أبي القاسم محمد وصل على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب الفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد علي الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر الصادق موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن العسكري والحجة القائم الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراهم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين ومحمد وآل محمد صلوات. مومنین کرام، وقت کی کمی کی وجہ سے اتنے یہاں تقاضا ہے یہ کرو ابھی ادھر چٹ آیا تھا، اس لیے خطبے میں سلوات میں بھی پریشانی ہے، کیا وقت نہیں ہے، کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں. عزیزان محترم، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی کل یوم ولادت ہے. یوم ولادت یعنی یوم ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولادت کعبے میں ہوئی، جو علی کے بعد نہ کوئی کعبے میں نہ اس سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوئی ہے. کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ سعادت علی کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. علی ہے، علی مشکل کشا ہے. علی کی ولایت کے بغیر کسی کی عبادت قبول نہیں ہے. عزیزان محترم، کل عید ہے، انشاءاللہ آپ سب جوش و خروش کے ساتھ اس عید میں شرکت کریں گے. ہر علاقے سے یہاں تشریف لائیں گے، بزرگ علماء جوان سارے، اور مولا امیر المومنین سے اظہار محبت کریں گے. علی بیگ کمیٹی سک میدان کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے تقاضا کرتے ہیں جوق در جوق علی سے اظہار محبت ہونے کا آپ ثبوت دیں ہاں اس عید میں شرکت فرما کر. پالنے والے ہمیں ہر خوشی میں اہل بیت کی خوشی میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیزان محترم، بہت سے باتیں تھی. یہ چراغان اس کی شرعی کی حیثیت کیا ہے؟ میرے پاس بہت سے دلیلیں تھے. یہ اظہار محبت ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب العقیدۃ الاسلامیہ میں یہ لائے ہیں. یہ چراغان وغیرہ اظہار محبت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی ضمن میں. لہذا آپ چراغان کریں اپنے گھروں میں، پہاڑوں میں، جو بھی چاہے. اظہار محبت ہے. اظہار محبت کی درجہ ہے، درجہ بندی میں سے ایک یہ ہے عید میں شرکت کرنا، محفل میں شرکت کرنا، اور چراغان کرنا، اور نئے لباس پہننا، خیرات دینا، یہ دعا پڑھنا، یہ سارے اظہار محبت ہے. لہذا انشاءاللہ آپ کل شرکت کریں گے. 1:30 بجے شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ علماء کرام خطاب فرمائیں گے. چونکہ یہ عید کا مہینہ ہے. 10 تاریخ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت تھی. ان کے ایک حدیث لے کے لایا تھا. وقت نہیں ہے، کیا بتاؤں میں کیا نہ بتاؤں. عزیزان محترم، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لا یجد العبد طعم الایمان. اس کو یاد رکھو. ہاں، لا یجد عبد طعم الایمان. کوئی بندہ، کوئی انسان ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا، ایمان کی لذت اس کو نہیں آئے گی
जब तक हत्ता यत्रुकल किज़्बा, यहाँ तक कि झूठ को तर्क न करे, हज़लन हज़लहु व जिद्दहु, मज़ाक़न भी झूठ को तर्क न करे और जिद्दियत के साथ हकीकी झूठ बोले। वो तो अल्लाह फरमाते हैं ईमान लज्जत को मलची और वस्फीन, मजाक वज़न्नतों, अपने छोटे बच्चों के मुकाबले में, अपने बीवी के मुकाबले में, अपने घर वालों के मुकाबले में मजाकन भी झूठ मत बोलो, अपने दोस्त के साथ, अपने हमसायों के साथ, और हकीकी झूठ तो हराम ही है। तो ईमान की लज्जत को अगर आप चाहना चाहता है, ईमान का मज़ा अगर आप लेना चाहता है, झूठ बोलने को तलब करो। ये मौला अमीरुल मोमिनीन की तरफ से हदिया है। अल्लाह ने मुहतरम, और दो तीन बातें, बहुत से 8 नुकात थे मेरे पास में, कौन सा बताऊं कौन सा ना बताऊं। एक तो यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त जीबी यानी जिद्दत बस्तिस्तान बगैर हुकूमत के रिमोट कंट्रोल के साथ चल रहा है। निगरान वज़ीर आला ने हल उठा के 40 दिन गुजर गया है, अभी उनके वज़रा का काबीने का पता ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्या रुकावट है? कौन रुकावट बन रहा है? ये तो रिमोट कंट्रोल पे से चल रहा है। ऐसी जब दुनिया में तो ऐसा तो देखा है आपने? कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि वज़ीर आला ने हल उठा के 40 दिन तक काबीना उसका न बने। रुकावट कहीं से पता है, शायद उसको खुद वज़ीर आला को पता होगा। लिहाजा जल्द जल्द ये लावारिस इलाके को कम से कम, हाँ मुकम्मल वारिस तो नहीं है ये लोग, लेकिन कम से कम सहारा तो लोगों का बनता है। जल्द अज जल्द ये काबीना बना के इस इलाके पर हर किस्म के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वफाक से लेना हो या कहीं से, लिहाजा वो आवाम के लिए सहूलियत फराहम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात है। दूसरी बात, बल्तिस्तान के लिए एक अहम मंसूबा आया हुआ है। वो क्या है? वो आपको पता है ना, पेट्रोल और डीजल 2 दिन रोड बंद हो जाए तो पेट्रोल नहीं मिलता है। ये पेट्रोल पंप बंद होता है, कोई मरीज अस्पताल ले जाने पेट्रोल नहीं मिलता है, हर चीज रुकी हुई है। लिहाजा उसको खत्म करने के लिए यहाँ रोंदू में, बगाटो में, वहाँ एक मंसूबा, वहाँ तेल ज़ख़ीरा करने का डिपो वहाँ बना रहा है, लेकिन वहाँ अवाम से पूछे बगैर बहुत ज़्यादा ज़मीन को वहाँ के इलाके के लोग बहुत तशवीश में मुब्तला है। चूँकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत बिल पास हुआ असेंबली में, बिल पास होने के बाद पूरी ज़मीन अवाम की हो चुके हैं। लिहाजा अवाम की रज़ायत से आप ज़मीन ले लें, उनको मुआवजा देकर ज़मीन लें। यहाँ थोड़ा मिलाया था तो कहते बहुत बड़े टंकर जाएंगे, ये शहर गुजर के उधर जाना, उसको रद्द किया उन्होंने, तो वहाँ ज़मीन लिया है। लिहाजा हुकूमत अवाम से, अवाम को मुआवजा देकर वहाँ वो बनाए तो बहुत इलाके के लिए बहुत मुफीद होंगे। और यहाँ चीज़ें जो आ रहा है बहुत नाक़िस है, हर चीज़ नाक़िस, जी नाक़िस, पकवान नाक़िस। और मुतासिफाना वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, खुदा न करे ऐसा ना हो, कहते कि हमारे लोग ही यहाँ से डिमांड करता है जी एक मन चीनी लाना है ना, 3-5 किलो कम करके लाना है, लेकिन यहाँ पूरे 1 मन का कीमत लेते हैं। अगर ऐसा हो तो हराम है, जायज नहीं है। इसी तरह आटा 3 केजी कम आता है, इसी तरह चावल 3 केजी कम, ये जायज नहीं है शरअन। नाक़िस चीजें, लोग बीमार हो रहे, कैंसर में मुब्तला, मैदे की तकलीफ में मुब्तला। लिहाजा इंतजामिया इन चीजों पर भी कड़ी नजर रखे और चीजों की अशिया फकत लकड़ी और गैस का कीमत तायीन करने से काफी नहीं होता है, इन तमाम चीजों की कीमत पर निगरान रखे। और ये 2 नंबर चीजें जो आ रहा है, इनको फौरी तौर पर इनको बंद होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, और 2-3 बातें थी, उनको मैं ख़त्म करता हूँ कि एक बेहतरीन अगर बैनुल अक़वामी है जो न्यूयॉर्क के मेयर जी वो ममदानी, उसने कुरान के हाथ रख के हलफ उठाया है।
हल उठाए, वो क्या कहते हैं? कुरान बहुत बड़ी बात है। ईसाइयों के बीच में, यहूदियों के बीच में कुरान पे हाथ उठा के, हाथ रख के वो हल्फ उठा रहा है, वो कह रहा है मैं हल्फ उठाता हूँ इस कुरान पे हाथ रख के, मैं तुम्हारी आवाम के हर चीज की हिफाजत करूंगा और तुम्हारे हुकूक के लिए लड़ूंगा। एक काश हमारे असेंबली में होने वाले हमारे नुमाइंदे भी इस तरह हल्फ उठा के तकरीर करते, हम आवाम की खिदमत के लिए हम हल्फ उठा रहा है। पालने वाले हमारे सियासतदानों को, अभी इंतखाबात आ रहा है, बस मैं ख़त्म करता हूँ, इस इंतखाबात आ रहा है, उसके लिए अभी से ये नारे लगने शुरू हो गया है, आप कदम बरा हम आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बरा सर्दी में इस्लामाबाद चले जाए हम हमारे साथ है, ये ना, यहाँ तो नहीं देते वो लोग। लिहाजा आइंदा आपने वोट देना है उन लोगों को, लेकिन स्नान देने नहीं जो आते नहीं, खुद पे से चाहिए। वाकई आप ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो दिलसोच हो इस इलाके के साथ, आवाम की खिदमत के लिए तैयार हो, आमदा हो। और बल्दी इंतखाबात भी होने वाले हैं, कहते हैं वहां भी कहते हैं कि अजीब किस्म के वो शेड्यूल बना है कि इधर के आदमी उधर के आदमी इधर, इनको दुरुस्त करना चाहे हर इलाके से वहां वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ एक मिल बन जाएगा, वहां बूढ़े होते हैं, खवातीन होते हुए नहीं जाते हैं, लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक गजा वालों के बेचारों के लिए वो इतनी मुश्किलात है, बारिश बरस रहे हैं और इसराइल की तरफ से बम भी, और तुर्किया में मैंने देखा 5 लाख लोगों ने गजा वालों के हक में जुलूस निकाला है। मैं उनसे कहता हूँ पहले आप अपने हुकूमत से जुबान से कहे इसराइल को तेल बंद करो, इसराइल के हमारे बंद करो, फिर जाके आपकी आवाज में कोई वजह नहीं, वरना उस आवाज की कोई वजह नहीं है। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको मजलूम के साथ देने और जालिम के साथ मुखालिफत करने की हमें तौफीक अता फरमा। पाने वाले बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलम इस्लाम सरबुलंद फरमा, अलम कुफ्र सरबून कर। पाने वाले बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद वतन अजीज पाकिस्तान दाखिली खारिजी दुश्मनों से महफूज फरमा। शायद मोदी को भी होश आया होगा, उसका वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश में हमारे स्पीकर के साथ मुसाफा किया और हाथ दिया, क्योंकि ये बुनियादन मरसूस दिफाई बुनियाद मरसूस के वजह से शायद उसको भी होश आया होगा। पाकिस्तान आबादी कम क्यों न हो, लेकिन हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा मुस्तक़बिल करीब में उनको होश आएगा और फिर हमारे साथ बाकी हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे। पालने वाले बिहक़ मोहम्मद वाली मोहम्मद हमें हुनूर और यहूद से होशियार रहने की हमें तौफीक अता फरमा। पालने वाले बिहक़ मोहम्मद वाली मोहम्मद माह रजब के आमाल बजा लाने के तौफीक अता फरमा। पालने वाले अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत को तमस्सुक रह कर अली अली हुसैन हुसैन कहते हुए तेरी बंदगी करने की तौफीक अता फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह।